everyone, welcome to Arch Education. Here I am Dr. Vandana Kushaha. Today I am going to discuss about eukaryotic DNA replication. So in previous videos I have uploaded on the topic that is DNA replication in prokaryotes and mitochondrial DNA replication. So this topic is also DNA replication but it in eukaryotes like plant. It can be animals, especially in the humans, as well as it is for the, you can say, that is yeast. Okay, so let's get started the video. It ensures the accurate duplication of the large linear genomes found in the organisms like the humans. This is the eukaryotic genomes, eukaryotic DNA, so definitely it will be large size, and here it is linear, but it is present in the prokaryote double standard circular. Okay, here it is linear. Multiple array of replication will be present. Each chromosome has the thousands of the replication, but I already discussed that is in the prokaryotes only a single array of replication is present. Replication rate will be here 100 nucleotides per second, slower than the prokaryotes. Why it is slower than the prokaryote? Because there is 1000 nucleotide per second processivity was there, and this is the only 100 nucleotides per second. Chromatin packaging. DNA is wrapped with the histone proteins. Histone proteins is absent in the prokaryotes, but it is found in the eukaryotes. It is wrapped by the histones, means DNA is wrapped by the histones. Forming nucleosomes, replication machinery must navigate the chromatin structure. Pre-replication complex proteins assemble at the origins before the replication begins. सिंपल सी बात है, जब भी आप खाना बनाने जाते हो उसके पहले सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए. तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन अगर होने जा रहा है सेल में, तो उसके पहले क्या होगी, प्रोटीन्स की असेंबली होती है. मतलब प्रोटीन्स प्रेजेंट है कि नहीं, जो भी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है, ठीक है. जैसे रेप्लिकेशन प्रोटीन ए है, एसएसबी है, इसके अलावा जो भी प्रोटीन्स है जैसे डेल्टा प्रोटीन है, गामा है, डीएनए पॉलीमरेज गामा, अल्फा, तो यहाँ पे सारी चीज़ें पहले से प्रेजेंट होनी चाहिए, तब तो डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पहले हम रेप्लिकेशन शुरू कर दें और फिर बीच बीच में प्रोटीन्स बनाएं. सो ऐसा नहीं होता है, राइट. Now, as usual, there will be three steps: initiation, elongation, and termination. So, in the initiation, pre-replication complex assembly will be there. Pre-replication assembly में क्या क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है. देखो, जो रेप्लिकेशन की जो स्टेज होती है वो एस फेज होती है. अगर आपको कहीं पे भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेल साइकिल की किस फेज में होता है, तो आपको एस फेज ही टिक करना है. बट जो भी उसकी प्रोटीन्स है वो तो पहले सिंथेसाइज होंगी, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल. बट यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं होता है. हम ऐसा बोल सकते हैं एक्चुअली में, एक्चुअल जो आंसर है वो लेट G1 और इनिशियल S1 है, इनिशियल S फेज है, राइट. In the G1 phase of the cell cycle, proteins like the origin recognition complex ORC, cell division control protein 6 that is CDC6, chromatin licensing and DNA replication factor 1 that is CDT1. Okay, MCM helicase assemble at the array of replication to form the pre-replication complex. So these are the proteins which are synthesized in the G1 phase. मतलब यहाँ पे ये असेंबली होती है इन प्रोटीन्स की, क्योंकि ये जो प्रोटीन्स है वो आगे रेप्लिकेशन में काम करने वाले हैं. आपको ये याद करके रखना है. कौन कौन सी है, ORC, CDC6 एंड CDT1 एज वेल एज MCM हेलिकेज, जो कि किसका काम करता है, हेलिकेज काम करता है. ये जो प्रोटीन्स होती है CDC6 और CDT1, ये इसको रिक्रूटमेंट काम में काम आती हैं. मतलब इसको नियुक्त कराती हैं, इसका रिक्रूटमेंट कराती हैं, ठीक है. एक्टिवेशन कब होता है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज तो G1 फेज में होती है, बट एक्टिवेशन कब होता है, इन द S फेज. काइनेज, अ ग्रुप ऑफ द एंजाइम लाइक द साइक्लिन E, CDK2 एक्टिवेट द प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बाय द फास्फोराइलेटिंग इट्स कंपोनेंट. इट हेल्प्स द हेलिकेज टू अनबाइंड द डीएनए. सी, ये जो साइक्लिन और CDK2 हैं ये किसका काम करते हैं, काइनेज का काम करते हैं. ग्रुप ऑफ द एंजाइम दैट इज काइनेज. जहाँ जहाँ सेल बायोलॉजी में, चाहे वो कितनी भी बड़ी बायोलॉजी हो, मेरे कहने का मतलब है पूरी बायोलॉजी में जहाँ पे वर्ड आता है काइनेज, इसका मतलब है वो किसी ना किसी का फास्फोराइलेशन करेगा. फास्फोराइलेशन वो प्रोसेस जिसमें कोई किसी ना किसी ग्रुप पे फॉस्फेट ऐड होता है, और इसका एक अपोजिट एंजाइम होता है दैट इज फास्फेटेज. वो क्या करता है, फॉस्फेट को रिमूव करता है. तो काइनेज एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब ही क्या है कि कहीं ना कहीं तो ये फास्फोराइलेट करेगा, फास्फोराइलेशन ऐड करेगा, राइट.
अब ये काइनेज ग्रुप क्या करते हैं, ये जो प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें फास्फोराइलेशन कर देते हैं। जैसे ही इसको फास्फोराइलेट करेंगे यहाँ पे हेलिकेज होता है, एक्टिवेट हो जाता है और वो क्या करता है, डीएनए को अनबाइंड करना शुरू कर देता है, राइट। रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। अब रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन कैसे होगा, मान लो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, अगर यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है दोनों स्टैंड के बीच में, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से ओपनिंग हो जाएगी, और जब दोनों ओपनिंग हो जाएगी तो एक ओवल शेप्ड का स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं बबल। Helicases continue to unbind the DNA helix due to unbinding. A replication bubble with a 2 replication fork is formed that moves in the opposite direction. यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन भी होती है, that is called replication protein A. So you can see here, right? ये ORC है, आपने देखा, जो कि प्री रेप्लिकेशन असेंबली में था, ORC कॉम्प्लेक्स, जो कि पूरे के पूरे डीएनए में क्या करेगा, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ढूंढेगा, जहां पे भी होगा, जहां पे रेप्लिकेशन शुरू होना होगा वहां पे जाके अटैच हो जाएगा। CDC6 एंड CDT1, CDC6 और CDC1 ये क्या है, ये भी क्या है, लोडिंग फैक्टर्स हैं। ये क्या करते हैं, MCM 227 को लोड करते हैं। लोड करने का मतलब सबसे पहले तो इसकी रिक्रूटमेंट करवाएंगे, मतलब इसकी जहां पे भी सेल में प्रेजेंट होगा इसको सिग्नल जाएगा कि तुम आ जाओ, तुम्हारे यहाँ पे काम है, ठीक है। MCM 227 क्या है, हेलिकेज है ये, बट ये फंक्शनल नहीं है, अभी इनएक्टिवेट है। तो CDC6 और CDT1 जो होते हैं ये बाइंड हो जाते हैं किसमें, ORC में जाके, फिर ये MCM 2 में, इसको बोलते हैं मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये इसको सिग्नल जाता है, तो ये भी आगे यहाँ पे क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। अब ये आके बाइंड होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाया, दैट इज कॉल्ड प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, ओके, P-pre-RC। फिर हमने डिस्कस किया यहाँ पे दो काइनेज एंजाइम ऐड होते हैं, दैट इज कॉल्ड CDK और DDK। अब ये CDK और DDK, मैंने बोला काइनेज जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, फास्फोराइलेशन का काम करते हैं। तो ये किसी ना किसी को फास्फोराइलेट करेंगे, और फास्फोराइलेट करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सेल में होना होगा, क्योंकि फास्फोराइलेशन से कुछ ना कुछ क्या होगी, एक्टिवेट होगी, ठीक है। तो ये किसका फास्फोराइलेशन करेंगे, देखो यहाँ पे और भी प्रोटीन्स आते हैं, जैसे आपका गिन्स है, पॉल एप्सिलॉन, तो चलो लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर दी, ये बात की बात है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो गिन्स है, ये SLD2 है, SLD3 है, CDC45 है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, लाइसेंसिंग फैक्टर्स होते हैं, फायरिंग फैक्टर्स होते हैं। जब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जाके बाइंड होते हैं। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ये ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर यहाँ पे बाइंड है, SLD3 है, यहाँ पे बाइंड है, और ये तो पुराना स्ट्रक्चर है, CDC45 है, यहाँ पे बाइंड है, राइट। अब देखो यहाँ पे ये DDK साइड से, मतलब DDK क्या कर रहा है, फास्फेट ऐड कर रहा है, और ये CDK भी क्या कर रहा है, फास्फेट को ऐड कर रहा है। लेकिन ये CDK जो है ना, वो किसको फास्फोराइलेशन कर रहा है, इस स्ट्रक्चर का फास्फोरेट, दैट इज DPV11 को फास्फोराइलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, DPV11 को फास्फोराइलेशन कर रहा है। और ये जो आपका DDK है, जिसको आप बोलते हो DBF4 डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, ये किसका फास्फोराइलेशन कर रहा है, ये आपका जो MCM 227 है इसका फास्फोराइलेशन कर रहा है। दिस इज कॉल्ड, जब ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है फास्फोराइलेशन के बाद, तब हम इसको बोलते हैं CMG कॉम्प्लेक्स। CMG क्यों आया, देखो यहाँ पे CMG कॉम्प्लेक्स इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे CDC45 है। इसके अलावा आपने देखा MCM 227 है, और G फॉर द गिन्स, ये इसकी वजह से जो मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं CDC45, MCM 227 और गिन्स, दैट इज कॉल्ड CMG कॉम्प्लेक्स। अब ये बन गया, एंड CMG जब ये पूरा का पूरा बन जाता है तब ये यहाँ पे एज अ फंक्शनल हेलिकेज काम करता है। देखो जो हेलिकेज है ना, अगर तुम इस डीएनए को, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, तो तुम अगर बस मान के चलो, हेलिकेज है ना पूरा का पूरा ड्राइवर है, एज अ ड्राइवर काम करता है, क्योंकि अगर ड्राइवर हटा दिया जाएगा तो बस चलेगी नहीं। तो हेलिकेज क्या करता है, ये देखो अनबाइंड करता है, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी ना इनके बीच में, यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, ये इसको ब्रेक करता चला जाता है, और इसके पीछे बहुत सारे एंजाइम्स आ रहे हैं, जैसे पॉल अल्फा है, पॉल डेल्टा है, पॉलीमरेज अल्फा है, पॉलीमरेज डेल्टा है, पॉलीमरेज एप्सिलॉन है। पॉलीमरेज जो अल्फा होता है यहाँ पे प्राइमेज का सिंथेसिस करता है। अब जब देखो सबसे पहली बात है, ये CMG, ये इतने सारे प्रोटीन्स क्यों ऐड हुए, ये प्रोटीन्स इसलिए ऐड जिससे कि ये फंक्शनल हो सके। ये जितने भी प्रोटीन्स है ऐड होने के बाद ही फंक्शनल होगा, यहाँ पे कोई भी फंक्शनल नहीं होता, बस यहाँ पे एडिंग और रिमूवल होता है, राइट। अब ये जब ये CMG कॉम्प्लेक्स बने, हेलिकेज की तरह फुल काम करने लगता है, मतलब ये फुल मोड में आ गया डीएनए को अनबाइंड करने के लिए, राइट। अब जब ये अनबाइंड करेगा तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आएगा। अल्फा के पहले एक प्रोटीन आता है, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन प्रोटीन A, और वो क्या करता है, यहाँ पे
रेप्लिकेशन प्रोटीन ये क्या करता है, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड ये कट कर रहा है, जैसे वहाँ पे हमने SSB देखा था ना, तो वहाँ पे इसको पकड़ के बैठ जाता है। फिर आता है पॉलीमरेज अल्फा प्राइमेज, तो ये प्राइमर सिंथेसाइज कर देता है और फिर यहाँ पे DNA जो स्ट्रैंड है उनकी सिंथेसिस होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेज इज द elongation. In this stage, new DNA strands are synthesized by the DNA polymerases, which adds the complementary nucleotides to the 3' end of the primer. ठीक है, अब इलोंगेशन में क्या होता है, हमेशा सिंपल सी बात है, जो भी DNTPs है वो ऐड होते हैं, एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन इन द फॉर्म ऑफ द ट्राइफॉस्फेट. ओके, सो DNA पॉलीमरेज अल्फा का काम होता है कि प्राइमर की सिंथेसिस करें. आपको पता है, चाहे वो DNA पॉलीमरेज थर्ड था, थर्ड किस में था, DNA polymerase third was in the DNA replication in the prokaryotes. वहाँ पे भी वो खुद से इनिशिएशन नहीं कर सकता था. सेम यहाँ पे प्रोसेस है, जो DNA polymerase जी डेल्टा होते हैं और एप्सिलॉन होते हैं, ये खुद से सिंथेसिस नहीं स्टार्ट कर सकते. किसकी, स्ट्रैंड की. तो इनको एक प्राइमर चाहिए होता है, और ये प्राइमर का सिंथेसिस कौन करता है, DNA polymerase अल्फा करता है. राइट, जब ये DNA polymerase अल्फा प्राइमर की सिंथेसिस करता है, तो जब प्राइमर की सिंथेसिस करेगा तब जाके वहाँ पे DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है. तो आपको ये यू हैव टू रिमेंबर दैट DNA पॉलीमरेज अल्फा क्या करता है, प्राइमर की सिंथेसिस करता है, मींस इट इज एक्ट एज द प्राइमेज एंजाइम. ओके, DNA पॉलीमरेज डेल्टा क्या करता है, इट सिंथेसाइज द लैगिंग स्ट्रैंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इट विल कन्वर्ट, इट फिल्स द गैप आफ्टर प्राइमर रिमूवल. देखो एक चीज याद रखो, जब DNA रेप्लिकेशन हमने प्रोकैरियोट्स में देखा था, तो वहां पे DNA पॉलीमरेज थर्ड जो था वो मतलब लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज तो कर रहा था, लेकिन उसके बाद वो गैप फिलिंग भी नहीं कर रहा था. गैप फिलिंग के लिए वहां पे पता है कौन आता था, DNA पॉलीमरेज 1 आता था. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, DNA पॉलीमरेज जो डेल्टा है ये खुद तो क्या करता है, लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है. यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनने के बाद यहाँ पे जो ओकाजाकी जो भी प्राइमर है वो रिमूव होगा ओकाजाकी. तो यहाँ पे जो प्राइमर रिमूवल के जो गैप फिलिंग करता है वो कौन करता है, DNA पॉलीमरेज डेल्टा ही करता है. ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कौन किया, DNA पॉलीमरेज डेल्टा. फिर यहाँ पे आता है दूसरा एंजाइम, दैट इज DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन. इट सिंथेसाइज द लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली. ठीक है, next in upcoming slides we are going to see then the diagram, so you can be clear most. PCNE clamp, this is the, देखो PCNE clamp जो होता है ना, एक पुश करने का काम करता है. मतलब ये क्या करता है, जो पॉलीमरेज प्रोसेसिबिलिटी है ना उसको इनहेंस करता है, इस प्रोसेस को आसान करता है और कुछ नहीं. इसको जो फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज सेल न्यूक्लियर एंटीजन, राइट. सो इट इनहेंसेस द प्रोसेसिबिलिटी. टोपोआइसोमरेज आपको पता ही है, टोपोआइसोमरेज क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है. इसको सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है, और इसको एक और चीज बोलते हैं, दैट इज डीकैटिनेशन एंजाइम. डीकैटिनेशन बिकॉज कैटिनेशन इज कॉल्ड सुपर कॉइलिंग. मीन्स अगर कैटिनेशन वर्ड आ रहा है, कैटिनेशन का मतलब होता है फंस जाना, जैसे रस्सी फंस जाती है ना बहुत ज्यादा सुपर कॉइलिंग में, तो इस एंजाइम को बोलते हैं डीकैटिनेशन एंजाइम. DNA लाइगेज क्या करेगा, जब ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या हो जाएंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे लैगिंग स्ट्रैंड में, तो वहां पे ये क्या करेगा, जो नेक क्रिएट्स होंगे उसकी क्या करेगा, सीलिंग करता है, सिंपल जोड़ता है उनको. सो यू कैन सी हियर, दिस इज द वेस्ट डायग्राम फॉर द इलोंगेशन which I have taken from the net only. So you can see this is the 3', 5'. यहाँ से आप देखियो ये 3'. देखो जो येलो कलर का है वो क्या है, ओल्ड स्ट्रैंड है, और जो रेड है ना ये क्या है, न्यू स्ट्रैंड है जो कि बन रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे 5' to 3'. अब आपको याद रखना, जो DNA पॉलीमरेज की जो सिंथेसिस होती है वो 5' to 3' होती है. ये डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं हो सकती. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होता. DNA पॉलीमरेज की जो डायरेक्शन होती है, मींस जो DNA सिंथेसाइज होता है, स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, वो 5' to 3' डायरेक्शन में ही होता है. तो अगर इस स्ट्रैंड की सिंथेसिस को डायरेक्शन में माइंड में रखकर अगर हम बात करें, सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, 3' to 5'. ठीक है, तो जो DNA की सिंथेसिस होना चाहिए वो कहाँ उल्टी होनी चाहिए, मतलब 5' to 3'. तो इसका मतलब इसकी जो सिंथेसिस होनी वो 5' to 3' होनी, और जो कि ऑलरेडी चल रही है, तो इसमें कहीं डिसकंटिन्यूअस की बात ही नहीं आती. मतलब प्राइमर उसी डायरेक्शन, एंजाइम उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है जिस डायरेक्शन में हमको चाहिए.
या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमको चाहिए उसी में काम कर रहा है प्राइमर, मतलब उसी एंजाइम उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये किस मैनर में होगा, कंटिन्यूस मैनर में सिंथेसाइज हो जाएगा। बट अगर हम इसकी बात करें, इसका डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओ येलो कलर इज द ओल्ड स्ट्रैंड, न्यू कलर सिंथेसाइज होगा 3 टू प्राइम में। अब जब ये न्यू कलर, लेकिन हमको सिंथेसिस कैसे चाहिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, तो ऑब्वियसली यहाँ से तो स्टार्ट नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं से हमको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो तो यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमर का सिंथेसिस हुआ 5 प्राइम में, फिर ये इतना डीएनए सिंथेसाइज हुआ, फिर यहाँ पे प्राइमर का सिंथेसिस हुआ, फिर ये इतना डीएनए सिंथेसाइज हुआ, फिर यहाँ पे प्राइमर बना, फिर ये इतना डीएनए सिंथेसाइज हुआ, फिर यहाँ प्राइमर बनेगा, फिर ये इतना डीएनए सिंथेसाइज, फिर ऐसे करके प्रोसेस चलता है, राइट। तो जो लास्ट प्राइमर सिंथेसिस होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं एंड पे होगा, यहाँ पे अभी जो जितना ओपन है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। आर यू गेटिंग? तब जाके जब आप इसको जोड़ोगे तो ये बनेगा ऐसा, मतलब यहाँ से 5 प्राइम से आप देख सकते हो, तब ये बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, क्योंकि आप 3 प्राइम टू 5 प्राइम बना ही नहीं सकते, उसकी डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन ही नहीं होती, तो क्या करेंगे, मीन्स डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की डायरेक्शन ही नहीं है वैसी। सो दिस इज ऑल अबाउट इलोंगेशन। देखो यहाँ पे ये सीएमजी क्या है, हेलिकेज है, ये आगे आगे चल रहा है। अगर ड्राइवर ही नहीं चलेगा तो गाड़ी कहाँ से चलेगी, तो ये ड्राइवर को आगे आगे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इसको ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको ब्रेक करना है, ये सिंगल स्ट्रैंड कन्वर्ट करेगा। ये भी सीएमजी क्या है, भूलना मत, CD45, M फॉर MCM227 और G फॉर द गिन्स। सो लाइक दैट दिस इज द कॉम्प्लेक्स एक्टिव हेलिकेज एंजाइम, दैट इज सीएमजी कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा क्या करता है, लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन क्या करता है, लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो अल्फा है, ये किसका काम करता है, प्राइमेज का काम करता है, ठीक है। जब ये सिंथेसिस हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई, तो ये प्राइमर रिमूव करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, हमने प्रोकैरियोट्स में भी रिमूव किया था। तो ये प्राइमर रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल एंजाइम आता है, दैट इज RNase H1 as well as FLAP endonuclease enzyme. Okay, so you can see here leading strand synthesis. The CMG helicase unbinds the DNA ahead of the replication fork. DNA polymerase epsilon moves along the leading strand, adding nucleotides continuously in the 5 prime to 3 prime direction. ठीक है, इसमें से सिर्फ इम्पॉर्टेंट इतना है, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन क्या करता है, लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। लैगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली, polymerase delta adds nucleotide to the 3 prime end and creates short Okazaki fragments, ठीक है। RNA primer removal, Okazaki fragments is followed by the segment of the DNA and RNA primer. The RNA primer is then removed by the specialized enzyme RNase H1 as well as the FLAP endonuclease 1। और जब ये प्राइमर रिमूव कर देगा तो यहाँ पे गैप क्रिएट होंगे, है ना, गैप क्रिएट होंगे, तो गैप फिलिंग कौन कर रहा था, सिंपल डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा खुद कर लेगा, आपने देखा स्लाइड में। टर्मिनेशन की बात आती है अब, तो टर्मिनेशन यहाँ पे कैसे होगा, रेप्लिकेशन फोर्क मीट्स, रेप्लिकेशन टर्मिनेट्स व्हेन द टू रेप्लिकेशन फोर्क्स moving from the opposite direction meet in the middle of the replicant. There are the multiple array of replication each with its own replication fork that are active simultaneously. देखो जब भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, लीनियर डीएनए है तो ऑब्वियसली बबल वगैरह बनना यहाँ पे, तो एक बबल, एक साइड तो रेप्लिकेशन फोर्क इधर है और एक साइड रेप्लिकेशन फोर्क इधर है। जब ये दोनों फोर्क आपस में मैच करेंगे, नेक्स्ट डायग्राम में भी देखेंगे, प्रूफ रीडिंग बाय पॉलीमरेज इंश्योर्स द फाइडेलिटी, करेक्ट मिसमैचिंग, सिंपल। प्रूफ रीडिंग यहाँ पे दोनों के पास होती है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा के पास भी होती है और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन के पास भी होती है। तो अगर कोई ये गलती कर रहे हैं तो खुद ही प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, इनके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। फाइनल सीलिंग बाय द डीएनए लाइगेज प्रोड्यूसेस द टू आइडेंटिकल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स। नाउ टर्मिनेशन स्टेज है तो ऑब्वियसली बात है, जो भी रेप्लिकेशन की जो भी प्रोटीन्स होंगे वो सब क्या होंगे, डिसअसेंबल होंगे। सीएमजी जो हेलिकेज होता है, दैट इज CMG helicase complex, a crucial part of the replication needs to be removed. इसको रिमूव करना पड़ेगा. This is facilitated by the dedicated pathway that involves the ubiquitination and the action of the P97 protein as segregase to remove the helicase and other proteins from the DNA.
तो यहाँ पे CMG हेलिकेज जो होता है इसका डिग्रेडेशन करवा दिया जाता है बेसिकली। देखो, जो यूबिक्यूटिनेशन प्रोसेस होता है वो डिग्रेडेशन का होता है, मींस प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए यूबिक्यूटिनेशन ऐड करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जिस भी कॉम्प्लेक्स का हमको डिग्रेडेशन करवाना है, बहुत सारे ये यूबिक्यूटिन प्रोटीन जो होती है वो 76 अमीनो एसिड की एक प्रोटीन होती है जो कि ऐड कर दी जाती है और प्रोसेस अपने आप ही क्या होता है, डिग्रेडेशन की तरफ सिग्नल हो जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन देखो ऐसा होता है, अगर लीनियर डीएनए है तो मान लो एक फोर्क इस साइड चल रहा है और एक फोर्क इस साइड चल रहा है, तो ये क्या करेंगे, दोनों फोर्क जब आपस में मीट करेंगे तो यहाँ पे रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन हो जाएगा, राइट। नाउ यस, वन प्रॉब्लम इज हियर ऑल्सो, वन मोर प्रॉब्लम इज हियर। देखो ये जो डीएनए होता है ना यूकैरियोट्स का, यहाँ पे टीलोमियर प्रेजेंट होते हैं, और टीलोमियर आपने अगर सुना होगा तो एजिंग फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीन्स अगर टीलोमियर का जीन जो होता है लॉस होता जाता है ना, तो यहाँ पे एजिंग फैक्टर क्या होता है, जल्दी आता है। अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ तो टीलोमियर जो सीक्वेंस होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सेनेसेंस के लिए, बुढ़ापे के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। टीलोमेरेज एक्सटेंड्स द क्रोमोसोम एंड्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अगर टीलोमियर मान लो, देखो यहाँ पे एक प्रोसेस दिखाया गया है कि एक सेल है, एक से दूसरी सेल बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी और 8 से ये कितनी बनी, 16 बनी। जब ये सेल बनता जाएगा फिर यहाँ पे इन्होंने ये टीलोमियर का पार्ट दिखा रखा है, ये रेड कलर का जो है टीलोमियर, ये देखो, ठीक है, रेड पोर्शन जो है वो टीलोमियर। अगर ये टीलोमियर कम होता गया तो यहाँ पे क्या होगा, गायब हो जाएगा। फिर जो अगली सेल आएगी हमारी बॉडी में, मतलब देखो सेल डिवीजन तो होते रहते हैं ना कंटिन्यूअस, लाइफ सोमैटिक सेल्स में डिवीजन होता रहता है, ठीक है। तो अगर एक पर्टिकुलर डिवीजन के बाद हम बुढ़ापे की तरफ क्यों चले जाते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर डिवीजन के बाद जो सेल होती है उसका टीलोमियर फिनिश होने के मतलब जो जीन होते हैं ना इसके लॉस्ट होते रहते हैं। तो ये जब यहाँ पे जीन जो होंगे बचेंगे नहीं तो बुढ़ापा तो आएगा ही ना। बस यही एक फैक्टर है टीलोमियर जिसको हम बचाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या फैक्टर है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डीएनए जो लीनियर डीएनए है उसके एंड में प्रेजेंट है। तो अगर ऐसा ही होता गया इसी स्पीड से तब तो हम बहुत जल्दी ही बूढ़े हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है, कुछ हद तक नहीं होता है, क्योंकि टीलोमेरेज एक एंजाइम होता है, ठीक है। टीलोमेरेज, ये टीलोमियर पार्ट्स तो अलग है, बट टीलोमेरेज एक एंजाइम होता है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है। टीलोमेरेज एक्सटेंड द क्रोमोसोम एंड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। टीलोमेरेज स्पेशलाइज्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, टीलोमेरेज एक प्रकार का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, एक्सटेंड द 3' एंड ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड यूजिंग एन इंटरनल आरएनए टेम्पलेट, thus preventing the telomere shortening and maintaining the chromosome integrity, ठीक है। तो ये देखो इसके डीएनए टीलोमेरेज के रेप्लिकेशन के लिए मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में थोड़ा सा वीडियो लेकर आऊंगी, क्योंकि इसको डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा, इसमें एक्चुअली टीलोमेरेज में 2 पार्ट होते हैं, एक तो TERC और TERT, एक कैटालिटिक कंपोनेंट होता है और एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का कंपोनेंट होता है। तो इसका रेप्लिकेशन अलग तरीके से होता है, तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन इनटू द यूकैरियोट्स। एंड जो भी आपकी क्वेरीज है, means whatever your queries you can comment on comment box, I will try to give the best of my answer. And this is all about the eukaryotic DNA replication. So I think this is the last, yes, this is the list it is given। अगर आपको फिर भी मान लो कि कहीं से कंफ्यूजन है तो ये एक फ्लो चार्ट है सिक्वेंशियल। सबसे पहले क्या होगा, ओरिजिन रिकॉग्निशन ऐसे करके सिक्वेंशियल एक फ्लो चार्ट है, आप इसमें से देख सकते हैं एंड डेफिनेटली यू विल गेट द क्लियर कॉन्सेप्ट। सो दिस इज ऑल्सो की इवेंट्स, मेजर एंजाइम, इनिशिएशन में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और क्या क्या प्रोसीजर है, लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड, यहाँ पे अल्फा डेल्टा एप्सिलॉन PCNA लाइकेज, like that all will be there this। So I think this is rest of my video in the DNA replication in the prokaryotes. Thank you so much guys, thank you so much।